Hello pupils, today we shall take one of the poem of your English syllabus, The Ball Poem by John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Songs in 1969, which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won National Book Award. So in this poem, a boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? So read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So first of all, we have to read the poem thoroughly. Then we will take the explanation of the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I will not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. By John Berryman. So, in this poem, the poem is talking about a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. The poet says, this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. He was sad and was trembling with fear. He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbour for a very long time and kept on looking for his ball. The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball. But he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball but will not bring the memories and feeling attached to the lost ball. He further says that the time has come for the boy to learn his responsibilities. Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. So what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? अब पोएट जो है वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, जैसे ये एक इमेजिनेशन है पोएट की. पोएट इसको इमेजिन कर रहे हैं कि एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल खो दी है और पोएट उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं थोड़ी ही दूर से. तो वो सोचते हैं कि जब उसकी बॉल जो है, जैसा कि पोएट ने देखा, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग. मैरिली मीन्स चीयरफुली. ये जैसे मैरिली इसमें दिया है, देखिए मैरिली बाउंसिंग. तो मैरिली बाउंसिंग जैसे ये इमेजिनेशन है पोएट की. अब बॉल जो है वो जॉयफुली बाउंस करके जो है वो जा रही है, ये इमेजिनेशन है. वो खुश है बॉल, ये उसकी जैसे इमेजिनेशन है पोएट की. तो उन्होंने देखा कि बॉल जो है वो बाउंस करती हुई, जंप करती हुई जो है वो चली गई और कहाँ जाके गिरी? पानी में. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब ये कहने का भी कोई पर्पज़ नहीं है, ये कहने का भी कोई जो है वो जैसे औचित्य नहीं है कि वो उसकी एक बॉल खो गई तो वो दूसरी ख़रीद सकता है.
क्योंकि जो बॉल जैसे होता है ना कि हर इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जिससे उसकी मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं, जिससे जो है उसका पास्ट जुड़ा हुआ होता है। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है किसी का, कोई अदर प्रोडक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उस बॉल से जुड़ी हुई, जैसे अब बॉल तो एक बॉल है, ठीक है ना, अगर उसको देखा जाए तो सिर्फ एक बॉल है, वो बॉल खो गई, दूसरी बॉल लाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि उससे उसकी मेमोरीज जुड़ी हैं और हो सकता है कि वो उसकी बेस्ट बॉल रही हो, तो वो बच्चा जो है वो एक एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब उस बॉल के पानी में चले जाने से वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो चुपचाप जो है वो खड़ा होकर जो है बॉल को देख रहा है। बॉल तो मान लीजिए पानी में चली गई, उसको दिख नहीं रही है, बट उस पानी को देख रहा है कि जहाँ पर बॉल उसके अंदर डूब गई, और उसको फिर उस मेमोरी को जो है वो रिकाउंट कर रहा है कि वो मेरी फेवरेट बॉल थी, या उसको मुझे जो है वो किस अंकल ने दिया था, या आंटी ने दिया था, या मदर फादर ने दिया था, है ना, वो मेरी सबसे फेवरेट थी। तो इस तरह का जो है वो फील कर रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोइट जो है वो उस बच्चे को देख रहा है, तो उसको एक जैसे मर्सी जो है वो एक डेवलप हो रही है उसके मन में, जैसे वो उसको हेल्प भी करना चाह रहा है, लेकिन फिर उसके मन में ये आता है कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो सोचता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि जैसे मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, है ना। और उसके बाद जैसे डाइम एक दिया है यहाँ पे, डाइम, तो डाइम मीन्स होता है, डाइम एक करेंसी है जैसे ना यूएस की, जो 10 सेंट्स में काउंट होती है। तो वो जैसे पोएट चाहता तो उसको कुछ पैसे दे के उसको कंसोल कर सकता था कि हाँ तुम जो है इस पैसे से एक नई बॉल ख़रीद लेना, लेकिन वो जो है वो सूटेबल नहीं होगा। और एट वंस जो है ये पोएट रियलाइज़ करता है कि नहीं नहीं, मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही कोई चीज़ खोई है, लेकिन उस खोने से भी जो है बच्चे को कुछ ना कुछ एक लेसन मिला है, एक सीख मिली है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों वर्ड यूज़ किया गया? रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए यूज़ किया गया कि जैसे अब इस एक बॉल के खो जाने से बच्चे को ये एहसास होगा कि मुझे बॉल को संभाल के रखना चाहिए था, मुझे जो है वो पानी के पास नहीं खेलना चाहिए था, या मुझे इस तरह से जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था कि मेरी बॉल जो है वो पानी में ना जा पाती। तो इस तरह से जो है वो पोएट फील करता है कि ये भले ही बॉल खो गई है, लेकिन उसके अंदर वाला भाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है सेंस डेवलप होगा। वो फ्यूचर में जैसे अब आगे जो है वो चीज़ को संभाल जो है उसके अंदर एक कैपेसिटी आए, वो लेसन कर लेगा। वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस यू टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब इस दुनिया में, यहाँ पे पोजीशन से मतलब ओनरशिप से है, इस दुनिया में जहाँ पर जो है लोगों के पास चीज़ें होती हैं, रिलेशंस होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, इस वर्ल्ड में जो है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब लोगों के पास चीज़ें आएंगी भी, जैसे बॉल तो एक एग्जाम्पल है ना, तो बॉल के सिवाय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मिलती रहेंगी, खोती रहेंगी, है ना, लाभ होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा, तो वो तो चलता रहेगा, है ना। वो बच्चे को ये लर्न करने को मिला है कि ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन जो बॉल खो जाएगी उस बॉल को जो है वो दोबारा ख़रीदा नहीं जा सकता। तो इसके लिए उसको एक लेसन लर्न करना है कि चीज़ या जो है रिलेशन है, उन सब को जो है उसे बहुत संभाल के जो है वो ट्रीट करना है, क्योंकि जो एक वस्तु खो गई उसको आप दोबारा नहीं ले सकते, उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर चीज़ आपको वापस नहीं मिल सकती। मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब पोएट फील करता है, उस बच्चे को देख के ऑब्ज़र्व करता है कि जैसे ठीक है, पैसा होना अपनी जगह पे है कि पैसे से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, अपनी जो है वो ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप जो लॉस हो गया, जो आपसे बिछड़ गया,
उसको आप दोबारा नहीं पा सकते। और वही चीज़ जो है वो बच्चा उस बॉल के खोने से सीख रहा है। यहाँ पे एक वर्ड आया है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स एक फ़िलॉसफी का वर्ड है ये एपिस्टेमोलॉजी, यानी नॉलेज। तो उसको नुकसान होने का ज्ञान हो रहा है, यानी ये जो बॉल खो गई उसका उसे जो है नॉलेज हो रहा है कि अगर मैंने बॉल को संभाल के रखा होता, मैंने जो है इस तरह से केयरफुली जो है प्रोटेक्ट किया होता, केयरलेस बिहेवियर ना शो किया होता, तो बॉल मेरे पास होती। तो हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कि एक दिन, जैसे अभी वो भले ही अर्ली एज में है, थोड़ा सा उसकी एज जो है अभी प्री मेच्योर है, हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सभी को मेच्योर होना पड़ता है और धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को सीखना पड़ता है, रिलेशंस को संभालना, अपनी जो है वो ऑब्जेक्ट्स को संभालना, जो पोजीशन है, जो आपकी ओनरशिप है, उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस बॉल के खोने से, यहाँ बॉल जो है वो सिम्बोलाइज़ की है पोएट ने, यहाँ पर वो जैसे सिंबल है, बॉल जो है वो सिर्फ सिंबल है एक किस चीज़ का, एक लेसन सिखाने का उस बच्चे को कि मुझे फ्यूचर में किस तरह से, यानी कि जब मेरी एज धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, और जो है वो फ्यूचर में और भी बहुत सारी जो है इस तरह के लॉसेस होंगे, बेनिफिट्स होंगे, तो उन सारी चीज़ों को मुझे समझने के लिए जो है ये एक लेसन है। तो पोएट ये फील करता है, इसीलिए पोएट उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसकी हेल्प कर देगा तो शायद वो इस लेसन से जैसे ना वो सीख नहीं पाएगा उसको, इसलिए वो उसकी हेल्प भी नहीं करता है। और उसको वो फील करता है पोएट कि आज इसको वो लेसन मिलेगा जो लाइफ टाइम इसके काम आएगा। सो like the channel, subscribe it and press the bell icon. Thank you.